Actually, SIP, think that while is one of the biggest foundation post UPI. और सारे मिडिल क्लास जो ग्रो किए हैं, मिडिल क्लास और मिडिल इंडिया में, वो समझेंगे कि कहते थे पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। हर चीज़ में ये सुनना पड़ता था कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता है, मगर अब कह सकते हैं कि पैसा शायद उग सकता है म्यूचुअल फंड से। क्योंकि ये सोचना कि मैं जल्दी से 1 करोड़ कर दूं, वो नेचर के साथ अगर आप कुछ करते हो तो मोस्ट लाइकली आप गलत ही करोगे। Ujjwal, tell me about share market. So share market is the latest broking app actually out of the PhonePe group. PhonePe as a group started the mutual fund business long back, 2020 onwards. Share market we started like last year August only. Actually, this August 30 it will be 1 year of share market. Wow. And the idea behind launching this broking app actually dates back to what we as founders were building before PhonePe acquired us. So the idea was very simple. In 2016, we realized that in next 10 years, markets will expand. So अभी market expand करेगा तो how do you make sure that the people who come into markets, they are intelligent in terms of their choices of instrument that they trade, invest in. And that led to the idea that let's build an intelligence platform that sits on top of broking. Now, initially we started working with every broker to build this intelligent platform, and usme we ended up building something called as a model portfolio, which is called Wealth Basket. तो अभी आप स्टॉक ब्रोकिंग पे जाते हो तो आप डायरेक्ट स्टॉक लेते हो, ETFs लेते हो, फ्यूचर्स ऑप्शन ट्रेड करते हो, बट मॉडल पोर्टफोलियोज ने क्या किया, जो अभी तक इंडिविजुअल स्टॉक रिसर्च आता था, अभी उसको researchers can actually aggregate a set of stocks following a particular theme and package it into form of a model portfolio research called Wealth Basket. इसमें इन्वेस्ट करने से फ़ायदा ये है कि नॉट ओनली यू आर एक्चुअली डाइवर्सिफाइंग इन अ थीम अक्रॉस अ सेट ऑफ स्टॉक्स, इसमें जब एंट्री एग्जिट्स के जो ट्रिगर्स आते हैं वो सिस्टमेटिकली रिसर्चर्स भेजते हैं, एंड यू कैन एक्चुअली फॉलो दैट रिसर्च सिस्टमेटिकली. सो स्टॉक ब्रोकिंग में पहली बार एक इंटेलिजेंट अप्रोच आया टू इन्वेस्ट, and Wealth Basket was the foundation. And so with PhonePe acquisition actually we are expanding that journey, और अब हमारा फोकस है कि डिस्काउंट ब्रोकिंग को सिर्फ प्राइसिंग और एक्सपीरियंस का कैटेगरी नहीं है, इंटेलिजेंस ऑल्सो नीड्स टू कम इन डिस्काउंट ब्रोकिंग, एंड Share.market का फाउंडेशन वही है. वाओ! एंड इसमें कोई कैप है वेल्थ बास्केट में? वेल्थ बास्केट अभी प्लेटफॉर्म पे 1000 रुपीज से स्टार्ट होता है. ओह! Yeah, यानी कि हर कोई कर सकता हाँ, है। so they are ETF wealth baskets like Giants of India where you can start with 1000 rupees. वाओ! And very simple, easy, like while it appears simple but it's a great wealth creator because उसमें जैसे for example Giants of India में इंडिया के टॉप 250 स्टॉक का 3 ETF है. ओह! So you are well diversified across top 250 stocks of India and they will definitely grow as a basket. तो एक और बात पूछना चाहती हूँ कि अगर शेयर मार्केट के बारे में मुझे जानना है या उस प्लेटफॉर्म पे जानना है, तो हाउ डू आई गो देयर? क्योंकि मैं ज़ीरोधा का सुनती हूँ, ग्रो का सुनती हूँ। You can obviously download it through App Store and Play Store. Just go and search Share.market and you'll get the Share Market app. And you just log in with PhonePe. So we have a very seamless login with PhonePe. If you possibly have an account with PhonePe and you do UPI with PhonePe, you will realize that on the we have a wealth tab there where we distribute mutual funds. From there also, for customers who have never opened an account, they can also come and install the app separately on Share Market. सो फॉर एवरीवन इट इज़ share.market, ऐप स्टोर से जाइए या तो फ़ोनपे के थ्रू जाइए। या Share.market वेबसाइट पे भी जा सकते हैं. We have a web platform also. Oh, very good. Yeah, ठीक है. So now we'll get into some questions which people have been asking, and I want you to help demystify these things. क्योंकि जब पैसे की बात होती है तो then we always think कि ना, मतलब बहुत शातिर दिमाग होना चाहिए पैसा ग्रो करने के लिए, and I don't understand. मगर I know you do simplify. You are a common man like us, and of course now you have made a lot of money. तो सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि हाउ टू इन्वेस्ट. अगर मेरे पास 10,000 रुपए है तो हाउ शुड आई इन्वेस्ट? सो अगर आप 10,000 रुपये, अगर आपका इज योर मंथली अर्निंग्स और इज द अमाउंट यू हैव? नहीं, मंथली अर्निंग, मेरा सैलरी है, सॉरी, 10,000 सैलरी है 10,000. अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट बियॉन्ड योर बेसिक लाइफ दैट यू नीड विद दैट मनी,
I think the best way to start when you're earning less, and generally people who start their first job, उनके पास या internship से चालू करते हैं बहुत लोग अपनी जर्नी, राइट? तो वहाँ पे बहुत कम पैसे मिलते हैं शुरू में. तो बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होता है कि आप थोड़ा थोड़ा डालो. एंड ये थोड़ा थोड़ा इंडिया में SIP बोलते हैं, विच इज़ अ प्रीटी कूल थिंग बाय द वे. एक्चुअली SIP, आई थिंक दैट वाइल is one of the biggest foundation post UPI to actually expand Indian markets. SIP का फुल फॉर्म बताइए. Systematic Investment Plan. Like UPI ने डिजिटल पेमेंट्स लाया, SIP ने मार्केट्स में हर इंसान को एक एस्पिरेशन दिया इन्वेस्ट करने के लिए, छोटा छोटा अमाउंट हर महीने. तो आई थिंक 10,000 रुपये वाले को अगर वो 500 रुपये भी महीने का बचा पा रहा है तो वो SIP चालू कर सकता है. और SIP म्यूचुअल फंड में कर सकता है. द बेस्ट म्यूचुअल फंड टू स्टार्ट SIP आर इंडेक्स फंड्स, बिकॉज वहाँ पे आप कोई फंड मैनेजर के बायस में नहीं जा रहे हो, यू आर जस्ट इन्वेस्टिंग इन इंडियाज टॉप कंपनीज, राइट? तो यू कैन स्टार्ट विद निफ्टी 50 इंडेक्स फंड. छोटा सा SIP कर लो. और अगर आप थोड़े इंटेलिजेंट होना चाहते हो, जो हम चाहते हैं हमारे इन्वेस्टर्स को, वहाँ पे आप थोड़ा कुछ पैसे जो इन्वेस्ट करना है उसको स्प्लिट कर दो इक्वली. थोड़ा इंडेक्स फंड विच विल गिव यू इक्विटी एक्सपोजर, थोड़ा डेट फंड जो बेसिकली आपको डेट का रिटर्न देगा लाइक FD के ऊपर, और थोड़ा गोल्ड ETF. तो ये तीनों में थोड़ा थोड़ा डाल सकते हो जितनी आपकी कैपेसिटी है बियॉन्ड योर बेसिक लाइफ एक्सपेंसेस. आई थिंक दैट्स अ ग्रेट स्टार्ट. Individual stocks with such a small earning, I would not recommend unless you want to invest and forget in specific stock. But it would be in small quantities to start with, and then you add every month. So that's how I would start with 10,000. तो अगर मैं फर्स्ट टाइमर हूँ मेरा और मैं सोच रही हूँ 1,000 रुपये में इन्वेस्ट करूँ, तो मैं कैसे जाऊँ ऑनलाइन, किस प्लेटफॉर्म पे जाके? फॉर एग्जाम्पल फोन पे के हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत लोग 1,000 रुपीज SIP करते हैं. I'm giving you a chance to sell. No, it's not about selling. Actually, see, one of the things like Force for Good is actually one of the things which PhonePe focuses on as a group. So when we started mutual fund, we wanted to actually reach to people who want to start small. Like nobody wants to focus in that segment, and we are very very fortunate that our actually number of SIPs that we do every month, a lot of people start very small, and we really feel that that's a good impact we are creating in society to actually share the India's growth story with SIPs, right? So वहाँ पे we see people start with 1,000 rupees SIP. Like अभी आप बात करते करते आप couple of clicks में you will be end up setting up SIP of mutual fund. तो यानी मैं फोन पे ऐप पे जाऊँ, वहाँ वेल्थ ऐप पे जाना, वहाँ आप you start with the very simple mutual fund, index fund, 1,000 रुपये का SIP सेटअप कर लो वहाँ पे. Like it will hardly take some minutes. Done. And मेरा क्या एम होना चाहिए कि ये पैसा मेरा कब, कितने दिन का होराइजन होना चाहिए, कब बढ़ेगा? See, if you are young, see, एज का फैक्टर भी है, आपके लाइफ के गोल्स क्या है वो भी मैटर करते हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि यार मैं 10,000 में तो आई कैन नॉट डू अ गोवा ट्रिप फॉर एग्जांपल, राइट? बट क्योंकि मेरे रेंटल एक्सपेंसेस, मेरे फूड एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस के बाद हार्डली कुछ बचेगा, राइट? तो वो थोड़ा जो पैसा है वो एस्पिरेशनल पैसा है, सो दैट इट कैन ग्रो. सो if you have some goals that you are planning, let's say you want to buy a good phone, you want to do a trip, right? And you may even want to fund your next like education plan, right? And it could be some family expenses, and obviously maybe have some decent corporates for emergency. So ऐसे कुछ गोल्स बनाना पड़ता है और उस गोल का होराइजन देखना पड़ता है. तो जिसका होराइजन छोटा है वहाँ पे हो सकता है आप इक्विटी एक्सपोजर ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि इक्विटीज़ वोलेटाइल होती है. तो आपने अभी इन्वेस्ट किया, आप समझोगे कि 4 महीने बाद मैं निकाल लूँगा इस गोल के लिए, हो सकता है 4 महीने बाद मार्केट्स आर डाउन एट दैट पॉइंट. तो आपको वो हार्ड बर्न नहीं होना चाहिए, राइट? तो जहाँ ड्यूरेशन छोटा है वहाँ पे आप ऐसे एसेट क्लास पे जाओ जिसका वोलेटिलिटी कम है, राइट? तो डेट इसीलिए FD लोग इमरजेंसी फंड FD में रखते हैं, राइट? या लिक्विड फंड्स में रखते हैं. म्यूचुअल फंड्स में भी दे आर लिक्विड फंड्स, आर्बिट्राज फंड्स. एक्चुअली लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन नो दे कैन एक्चुअली गेट बेटर देन सेविंग्स बाय जस्ट by investing in mutual funds. There are some mutual funds who give you FD like savings से better return on a tax adjusted basis. जैसे liquid funds है, liquid ETFs है और broking platform पे, arbitrage funds है, तो जहाँ पे आपका duration अगर 6 महीना 1 साल के अंदर है. short term funds, ultra short term duration funds, mutual funds, they give better return than savings. तो वो हल्का थोड़ा सा incremental अगर आपको gain हो रहा है beyond 3-4%, that's a great start for smaller duration. फिर अगर आप 1 साल के ऊपर है तो आप इक्विटी में चले जाओ थोड़ा पैसा. तो क्योंकि आप 1 साल के ऊपर ओवर अ पीरियड equities are best asset class, actually your best friend to actually achieve aspirational goals. So that's how you have to plan. So वो goal का duration क्या है, एसेट क्लास को समझना बहुत ज़रूरी है. आप ये सोचोगे कि मैं आज मेरे पास 10,000 है, इसको 20,000 करने के लिए चला जाता हूँ मार्केट,
वो डेंजरस है, वो एक्चुअली नहीं करना है। अगर आपका शॉर्ट टर्म में फोकस है कि मेरे को पैसे चाहिए, तो मे बी यू कुड गो राइट इन सम केसेस, बट यू कुड गो रॉन्ग ऑल्सो। बट द मोमेंट यू गो बियॉन्ड 1 ईयर, 2 ईयर, 3, 5, इक्विटी से ज़्यादा अच्छा कंपाउंडिंग रिटर्न कोई नहीं दे सकता। जब तुम ये आंसर कर रहे थे, मैं सोच रही थी कि मेरे फादर और सारे मिडिल क्लास जो ग्रो किए हैं, मिडिल क्लास और मिडिल इंडिया में, वो समझेंगे कि कहते थे पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। हर चीज़ में ये सुनना पड़ता था कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता है, मगर अब कह सकते हैं कि पैसा शायद उग सकता है म्यूचुअल फंड से। पैसे का ना कल्चरल ये कनेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। फॉर एग्जांपल मैं कलकत्ता में बड़ा हूँ मैं अब वो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वहाँ कलकत्ता में, स्पेशली इन द मारवाड़ी कम्युनिटी, आई एम ए जैन, राइट? सो वहाँ जैन कम्युनिटी, मारवाड़ी कम्युनिटी, लाइक दीज पीपल आर लाइक प्री पोस्ट इंडिपेंडेंस, आई मूव्ड फ्रॉम राजस्थान टू कलकत्ता टू बिजनेस, ट्रेडिंग एंड ऑल। सो माई फादर ऑल्सो मूव ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज। वहाँ पे वो शुरू से, मेरे पापा मुझे बताते थे कि वो जब पहली सैलरी उनकी थी 300-400 रुपये, कलकत्ता में एक्सप्लैनेड बोल के एक एरिया है, वहाँ मेट्रो सिनेमा के ऊपर ट्रांसपोर्ट कंपनी में जॉब करते थे। उस समय से वो IPO कर रहे हैं। और मुझे याद है कि हमारे घर पे स्टॉक मार्केट इतना मेन स्ट्रीम था कि जब भी कुछ इशू आता था तो मॉम बोलती थी ये कैस्ट्रॉल इंडिया का शेयर बेच दो, ये JB केमिकल्स का शेयर बेच दो। तो while my mom is by the way 9th pass out, she is not like a very learned educated, she had her own life circumstances, but she knew कि इक्विटी कितना इंपॉर्टेंट है। तो वो इतना मेन स्ट्रीम था, तो ऐसा लगता था कि अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं कि वेल्थ क्रिएट कैसे करते हैं। सो देयर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया एक्चुअली विच बिलीव्स इन इक्विटी सो स्ट्रांगली। सो उसका फ़ायदा भी होता है कि इन आवर लाइफ एक्चुअली वी अंडरस्टैंड इक्विटी सो वेल, राइट? वेल, बट the fact is a lot of people now, thanks to internet and general awareness, people are understanding the power of investing and the power of investing in equities. And I think that I think that is actually one of the reasons why you see there's so much of news around domestic money itna India mein invest karne ke liye. There are so many IPOs coming to actually serve this rising supply of money. So it's pretty exciting that way. Okay, so next question, one should buy or rent a house? I think it's a very personal thing. For example, I have bought a home, right? And it is more to do with the emotional element to it. There's a lot of emotional element to it. There's no financial angle to it. I mean, that way I think it's maybe technically could be a lot like financially not good because I could have invested in markets. But there's a part, basis all the money that I had, I mean, I was okay to have a home, not like a home which I really want to call a home and my family can call it a home. So it's a very personal thing. But if you are in a journey of growth as a young individual, as a family, and you really are balancing between your expenses for a decent life and investing for future growth, उसमें अगर आप उस फ्यूचर ग्रोथ को रोक के अगर आप अभी घर लेते हो पैसे लोन लेके या कुछ डाउन पेमेंट करके, आई थिंक दैट्स नॉट अ गुड फाइनेंशियल चॉइस। बट वही पैसा अगर आप ग्रो करते हो फ्यूचर में, अगर आपके पास इतना कॉर्पस है कि आपका इमोशनल वैल्यू है फ़ोन से, तब ईजी होगा। बट आप अपना फ्यूचर ग्रोथ रोक के अभी घर खरीदोगे तो आप बहुत पैसा लॉक कर दोगे। वही रेंट करके यू कैन कंटिन्यू टू एक्चुअली पुट सम मनी असाइड फॉर फ्यूचर ग्रोथ थ्रू इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो ये शायद सही है, क्या कहते हैं कि नेट आज घर खरीदना इज अ लॉस मेकिंग एंटरप्राइज? क्योंकि financially हाँ depends. I mean, financially there could be some pockets, like even in Bangalore real estate prices are high, going like crazy for post COVID. Now you could go really right, but I can give you a real life example. I have a small home in Mumbai, I can talk about it, where I bought it at a time, it's in the Ghatkopar suburbs. I bought it when the Godrej property stock price was at around 250 rupees. Now I am just giving an example, right? And I really believe that stock price was undervalued at that point, and Godrej was growing crazy in terms of expansion in inventory, everything. And I told my wife, we just got married, and after like couple of years after that, one or 2 years after that, कि let's me hold this shares for whatever down payment I'm going to do, we can still continue to be on rent. But वो मुंबई में क्या है ना, वो हर 11 महीने में रिन्यूअल होता है, तो वो इमोशनल वैल्यू था कि अरे यार कहीं तो स्टेबिलिटी लाते हैं, तो हमने ठीक है चलो घर लेते हैं. बट आई सेड दैट यू जस्ट ट्रैक द स्टॉक प्राइस, राइट? एंड टुडे Godrej Properties has a different, like, Yeah. I think it's in multiples of X of 250. I think it's in the 2000 ranges. I don't know the exact price, but the fact is, has my real estate, the Mumbai property has grown that much? No, it's still there. It's flattened only. So financially, you have to know which pocket you're getting into. I invested because I bought a home because I had an emotional
I wanted an emotional there was an emotional element, wanted more stability in a big city and all that. But at the end of the day, you need to be very clear ki, are you serving a financial outcome or you're serving an emotional outcome? And if you're serving an emotional outcome and you can afford it, definitely go for it. It's your call. But if you are actually compromising on your financial outcome and not very much clear about your emotional outcome, and you are very young, I think rather put some money which can grow fast. ये क्वेश्चन सबके लिए होगा, बहुत लोग इस जानना चाहेंगे कि हाउ टू मेक 25,000 रुपीज इंटू 1 करोड़ रुपीज. ये डबल और नथिंग वाला प्रॉब्लम आ गया है. 25,000 को 1 करोड़ कैसे बनाए? 25,000 को 1 करोड़ एक दिन में तो नहीं बना सकते. वो चलो ठीक है. एक महीने में भी नहीं बना सकते, एक साल में भी बना सकते. बट कुछ सालों में, मतलब कुछ सालों का could be 3, 5, 7 depending on what you do. If you invest right, I think at some point that money will compound. See, power of compounding does not, you don't feel it in the first few years. For example, अगर आपने पहला 10,000 रुपये डाला आज, पहले एक साल में 10,000, लेट्स से 10,500 हुआ, नेक्स्ट ईयर से 10,500 कंपाउंड हो रहा है, राइट? तो वो 25,000 का जो ग्रेजुअल कंपाउंडिंग होगा, वो आपको, मतलब अगर आपको 1 करोड़ एक पर्टिकुलर सर्टेन वेलोसिटी पे अगर बड़ा करना है, तो वो आई थिंक इक्विटी से अच्छा कुछ नहीं है. बट अगर आप जाके मैं नाम नहीं लूँगा, कोई एक पेनी स्टॉक खरीद के रख लिए कि यार ये तो जल्दी से मेरा 1 करोड़ कर देगा, तो वो ज़ीरो भी हो सकता है बहुत जल्दी. बट वो 25,000 आपने अगर मीनिंगफुली, लेट्स से आई वुड से 3 ETF में डाल दिए, 3-4 ETF में, लाइक निफ्टी 50, नेक्स्ट 50, मिड कैप ETF, या एक सेट ऑफ ETFs में डाल के छोड़ दिया, 3-4 साल 5 साल में 1 करोड़ तो नहीं होगा, मुझे नहीं पता. आई मीन कैगर ऑफ व्हाट परसेंटेज विल मेक 25,000 1 करोड़, बट एट सम पॉइंट इट विल ग्रो मच फास्टर देन putting that money randomly in a bank account or putting it in a just one stock thinking कि ये तो डबल कर देगा, ट्रिपल कर देगा और पता नहीं क्या 10x कर देगा, और मे बी सम हाईली वोलेटाइल क्रिप्टो. सी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को लगता है कि जल्दी से पैसा बढ़ जाए, बट जल्दी से पैसा बढ़ता नहीं हो. मतलब इट्स लाइक, लेट्स ब्रीथ टू दैट. जल्दी से पैसा बढ़ता है, वो टाइम लेता है. हाँ, उसमें टाइम लगता है. हाँ, जैसे कि मसल बिल्डिंग वाला टाइप. यस, मसल बिल्डिंग वाला टाइप, या मतलब सी अगर आप कुछ खुद भी कुछ बनाते हो, राइट? लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप स्टार्टअप करते हो, तो अगर आप ये सोचो कि मैं 1 साल में वो स्टार्टअप आइडिया से फंड रेज भी कर लूँगा, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट भी बना लूँगा, 0 to 1 की जर्नी के साथ 1 to 10 की भी जर्नी उसी साल हो जाएगी, 10 to 100x की जर्नी भी उसी साल हो जाएगी. ऐसा तो होता नहीं है, राइट? इट टेक्स सम टाइम, राइट? तो मनी, व्हेन यू पुट मनी इनटू समथिंग, इफ यू इन्वेस्टेड विद सम राइट माइंड एंड सोच समझ के इंटेलिजेंटली किया है, तो इट विल ग्रो. सी द प्रॉब्लम इज दैट बहुत लोग क्या सोचते हैं ना कि मुझे वो मिल नहीं रहा जिससे मैं 25,000 को 1 करोड़ कर दूं, और वो बहुत टाइम लॉस कर रहे हैं. वो डेंजरस है, क्योंकि ये सोचना कि मैं जल्दी से 1 करोड़ कर दूं, वो नेचर के साथ अगर आप कुछ करते हो तो मोस्ट लाइकली आप गलत ही करोगे. कुछ भी जल्दी से नहीं होता है. कुछ भी जल्दी से नहीं होता. ये सबसे बड़ा सच है जिंदगी का. कुछ भी जल्दी से नहीं होता, और नहीं कुछ करना भी बहुत गलत है. हाँ, और जो जल्दी से अगर हो गया तो वो रहता नहीं है. और सी जल्दी से करने के लिए आप क्या है ना, बहुत बार आप लोग ये बोलते हैं कि यार मुझे मिल ही नहीं रहा वैसा कि जिससे मैं जल्दी से पैसा बढ़ जाए. वो कुछ नहीं करते. इससे अच्छा आप कुछ स्मार्टली कुछ कर लेते तो ग्रेजुअली कुछ तो बड़ा होता है, राइट? सो वही है. एंड इफ यू आर फॉर्चुनेट टू फाइंड समथिंग टू मेक 25,000 1 करोड़ क्विकली, मोस्ट लाइकली इट्स अ स्कैम. Yes. तो वो 25,000 भी चला जाएगा. यू आर सेइंग लॉन्ग टर्म पेशेंस के साथ हो तो बन जाएगा. और वेट मत करो. इन्वेस्ट in something which you understand, but do something about your money. Let that money grow beyond FD returns, beyond savings account return. It is very important for India to put the money into practice. Yeah. How to generate passive income? Financial world mein there's this literature called human capital and financial capital. So when we are out of our college or anything, when we start up with our job or anything, we actually deploy of human capital. हमारा अपना समय और हमारा अपना माइंड, और उससे हम पैसा क्रिएट करते हैं. वो पैसा, वो फाइनेंशियल कैपिटल होता है, उसको आप पैसिवली इन्वेस्ट करते हो क्योंकि आप एक्टिवली ह्यूमन कैपिटल पे फोकस कर रहे हो. तो एक्चुअली जो लोग इंटेलिजेंट है और जो एक्चुअली आई वुड से इंटेलिजेंट इन द सेंस हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयबल एंड दे आर एम्प्लॉयड व्हेन दे आर क्रिएटिंग देयर, व्हेन दे आर गेटिंग देयर
like salaries and when they are saving money, actually उसको passively financial capital में डालना is a 101 requirement. तो अब उसमें अगर आपका करंट ह्यूमन कैपिटल जो आप डिप्लॉय कर रहे हो, आपका जो टैलेंट है, उससे आपके करंट एक्सपेंसेस मीट नहीं हो रहे, राइट, फॉर एग्जांपल, तो आपको पैसिव इनकम भी चाहिए, राइट. तो वो जो इन्वेस्टमेंट है ना जो आप कर रहे हो, वो कुछ पैसे ऐसे एसेट में डाल सकते हो जिससे आपको मंथली इनकम आए. फॉर एग्जांपल इट कुड बी इट्स इंटरेस्ट पेइंग डेट फंड, इट कुड बी एफडी आल्सो विच हैज़ मंथली पेमेंट, इट कुड बी एनीथिंग. बट जब आप एक्टिवली कुछ परस्यू कर रहे हो, तो आप उससे जो पैसा जनरेट करो उसको पैसिवली इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा. एक्चुअली लॉट ऑफ पीपल डू रॉन्ग विद देयर इन्वेस्टमेंट इज दैट दे कि वो अपना ह्यूमन कैपिटल तो एक्टिवली परस्यू कर ही रहे हैं जिससे वो जॉब कर रहे हैं, वो जहाँ पे उसको पैसिव होना चाहिए इन्वेस्टमेंट साइड में वो एक्टिव हो जाते हैं वहाँ, और वहाँ गलतियाँ करने बैठ जाते हैं. Important to differentiate, acknowledge, and do it Yes. separately. See, there are situations where your current job or the money that you're making every month is not enough for you to have a basic life. So you need to put some money into practice, right? So that it can generate passive income for you. So that is still an investing strategy, right? कि यार इतना पैसे से मुझे महीने का इतना पैसा चाहिए, बाकी मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहा हूँ. तो passive should be your mantra for anything to where you want to put money into for your use, right? Or for money to grow for you. So passive is the only way to do that. How do you balance risk and reward when making investment decisions in a volatile market? Volatility actually time duration से बहुत impact होता है. For example, if you say that is India a volatile market in a 6-month period, yes. Is India a volatile market in 3-year period? Possibly no. So risk और reward वहाँ से आता है. तो अगर आप बोलोगे कि यार मेरे को मेरे पैसे ऐसे एसेट में डालने हैं जहाँ पे मुझे 1 रुपये का भी नुकसान नहीं दिखना चाहिए जब मैं सुबह उठूँ, तो इक्विटी आपके लिए है ही नहीं. बट इज दिस द गुड स्ट्रेटजी? क्योंकि आप जस्ट बिकॉज आपको अगले दिन सुबह लाल नहीं दिखे, आप इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करो, जबकि आप यू कैन स्टिल सर्वाइव दैट सम लॉस इन द इंटरिम, बट लॉन्गर टर्म में आपको आउटकम्स अच्छे मिल सकते हैं इक्विटी से. तो वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड का जो जो क्वेश्चन है ना, वो आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना होता है कि यार मुझे क्यों डेली उठ के इक्विटीज देखना है अपना, राइट? लाल हो या हरा हो. अगर मैं ट्रेडर हूँ तो अलग बात है, अब तो फिर आपके लिए मार्केट धर्म है, राइट? बट अगर आप रेगुलर इन्वेस्टर हो तो आप एक पर्पस के साथ इन्वेस्ट करते हो ना, तो वहाँ पे आप मान लेते हो कि शॉर्टर टर्म में इक्विटी वॉलेटाइल है, बट मेरा वो रिस्क के अगेंस्ट रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको वैसे देखते हो, मेंटल मैप क्रिएट करना पड़ता है, राइट? बट आप जब एफडी में डाल रहे हो तो आपको वो पैसा वो एफडी में इसलिए डालो क्योंकि आप वो चाहते हो कि इतने को तो मैं प्रोटेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं इसमें शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी भी नहीं देखना चाहता, क्योंकि मुझे शायद वो चाहिए अभी कोई नेक्स्ट ट्रिप के लिए, आई वांट टू बाय समथिंग, और मे बी आई हैव इनकमिंग एक्सपेंसेस, फैमिली एक्सपेंसेस और एनीथिंग. वो आप पैसे को वोलेटाइल नहीं रख सकते, तो वहाँ आप फंडामेंटल लेवल पे रिस्क नहीं ले रहे हो, क्योंकि आपका रिवॉर्ड आपको टेपर डाउन रखना है उसमें, बट आपको वो पैसा उस जिस पीरियड के लिए चाहिए उसमें वोलेटिलिटी नहीं देखना आपको. बट जो पैसा आपको लेट्स से 3 साल नहीं देखना है, आप उसमें रिस्क रिवॉर्ड का अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे कि मैं अगले 3 दिन मार्केट गिर के लाल दिखेगा तो मैं उस मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं करूंगा, जबकि वो पैसा आपको 3 साल तक चाहिए नहीं, तो वहाँ रिस्क रिवॉर्ड आप गलत ले रहे हो. तो रिस्क रिवॉर्ड को ऐसे देखना पड़ेगा. What are the 3 sectors which you think will grow and you would advise to invest? और मैं नहीं कहूँगी advise नहीं करिए, but what you would consider as sectors? See, looking at like the overall government focus in terms of like both from the next sunshine sectors they want to promote and support through policies, and in terms of even potentially creation of jobs and where there's an opportunity as a country in the larger global outlook. I think I'm really bullish sectorally. I'm very bullish on manufacturing, healthcare, defense, deep tech, everything, right? Where we really have strong foundations now to take it to next level. So these sectors I really like, right? Manufacturing इसलिए क्योंकि बहुत impetus and we are laggard in for the longest time, right? So incrementally it will only be good, right? So, and if we are able to manufacture not just for the country consumption but for like larger global in some specific cases, I think it's a great place to be to invest, right? What are the top 3 mistakes new investors make? I have made mistakes as a new investor. I thought that I am the smartest guy, and thanks to कि घर में बड़े हुए तो लगा स्टॉक मार्केट तो समझ में आता ही है. आई एंडेड अप इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इन अ वेरी हाईली कंसंट्रेटेड वे एंड लॉस्ट लॉट ऑफ मनी.
बिकॉज वो क्या होता है ना कि आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, वाइल यू स्टॉक वो सही लगता है आपको कि आपने सही स्टॉक ढूंढा है, फिर आप उसके अराउंड पॉजिटिव न्यूज़ भी ढूंढने लगते हो, उसको बोलते हैं कन्फर्मेशन बायस। फिर आपको उसमें जो गलत न्यूज़ होता है उसको मेंटल लेवल पे अवॉइड करने लगते हो, क्योंकि आपका कन्फर्मेशन बायस ये है कि मुझे पॉजिटिव न्यूज़ ढूंढना है। एंड समवेयर if some signs go wrong with that stock and you see the losses and you realize that then you realize that ki it is not a good strategy, right? I have made those mistakes, many people make that mistakes, and statistically there's a data also. India mein total accounts, actually demat accounts have crossed 16 odd crores, right? uh, in terms of active accounts in a year, that is still in the ranges of 3.5 4 crores, around that, which means that many accounts get dormant because people actually make early mistakes with their investment and trading, where they think, yeah, I'm the smartest guy in the room, I will do this. And in most of these cases what they do is that they invest, maybe they take right choices start में. होता क्या है ना, विनर्स आप जल्दी भेज देते हो, लूजर्स में आप ढूंढने लगते हो कि यार ये कंफर्मेशन बायस है कि ये अच्छा हो जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा, और उसको रख लेते हो, और आपका पोर्टफोलियो लार्जली लॉस में रहता है, तो आप फिर उससे डिस्कनेक्टेड हो जाते हो, वो डोरमेंट होने लगता है। तो वो मोस्ट ऑफ द पीपल इन मार्केट्स मेक मिस्टेक्स। बट वही जनरली वो म्यूचुअल फंड में नहीं होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर है, वो अपना शांति से उसका डे जॉब वही है, आप खाली इन्वेस्ट करो और आप थोड़े एब्स्ट्रैक्टेड होते हो। तो ब्रोकिंग और म्यूचुअल फंड में यही डिफरेंस होता है कि मार्केट्स का एसआईपी ग्रोथ हैज बीन वेरी कंसिस्टेंटली ग्रोइंग एंड नंबर ऑफ एक्टिव एसआईपी इन्वेस्टर्स आर ग्रोइंग। ब्रोकिंग में इट्स अ जर्नी, दैट्स वाई हमारा फोकस ये है कि हाउ डू यू ब्रिंग दैट इंटेलिजेंस इन द कोर ब्रोकिंग एक्सपीरियंसेस, सो दैट पीपल एक्चुअली वी टेंड टू इम्प्रूव दैट रेशियो वेयर पीपल एक्चुअली मेक लेसर मिस्टेक्स बाय विद द राइट information and products. I think that is where I think we want to help support, and I mean create an ecosystem where people make less mistakes. Because for people with less money, it can mean so बट much. हार्डली इन्वेस्टर्स का वही होता है कि उनके पास कॉर्पस कम होता है, उनको लगता है जल्दी से ग्रो करने के लिए ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, और मोस्टली आप गलत हो जाते हो। Yeah. It's life lesson also, Yeah, no? life lesson. Greed lesson, Actually, time हाँ, lesson, हाँ, patience हाँ, lesson. but sometimes actually if you in the trading journey actually it is said that कि आपने थोड़ा लॉस किया तो it is the biggest lesson. No school, no B school, no lecture can teach you that, no academics can teach you. It's a real life that teaches you. That you should Market lose. teaches you that. Yeah. The SIP investment duration on returns and how long one should ideally stay in. SIP में कितने Yeah, time का horizon होना चाहिए? see, generally SIPs are is that where you are actually deploying a smaller chunks every month, right? So that's a systematic where you are saying that कि यार कम वॉट में मेरे कितने भी लाइफ के ऊपर नीचे एक्सपेंसेस होंगे, अनप्लान्ड, इमरजेंसी, रेगुलर, एवरीथिंग, इतना पैसा तो मैं हर महीना एसआईपी में कर ही सकता हूँ। अब वो एसआईपी किस म्यूचुअल फंड्स में करते हो, वहाँ पे ड्यूरेशन बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर एग्जांपल मुझे लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में एसआईपी करना है। अब मैं अगर वो एसआईपी के में लेट्स से 3 एसआईपी करता हूँ मैं, राइट? और मैं एक मतलब एक एसआईपी बोल लो या 3 जगह डिवाइड करता हूँ अमाउंट, राइट? अब मैं ये सोचूँ कि मैं ये स्मॉल कैप वाला एसआईपी इमीडिएटली 2-3 इयर्स में इससे मेरे को एक्सपेक्टेशन है, इस पैसे को निकाल के मैं लेट्स से कुछ करना चाहता हूँ। वो रॉन्ग अप्रोच है, क्योंकि स्मॉल कैप्स थोड़े वोलेटाइल होते हैं वर्सेस लार्ज कैप्स। तो क्या है ना, 2-3 साल के व्यू पॉइंट से हो सकता है यू कैन बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ मार्केट साइकिल, क्योंकि स्मॉल कैप्स आर वोलेटाइल, हाईली वोलेटाइल, राइट? बट लेट्स से लार्ज कैप नहीं होते, लार्ज कैप आर सस्टेनेबली ग्रोइंग, बट दे इन लेट्स से इन अ 5 ईयर व्यू स्मॉल कैप कैन आउट परफॉर्म अ मिड लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, possibly. I mean there could be cases otherwise also, but क्योंकि वो हायर देयर ग्रोथ पाथ इज स्लाइटली एग्रेसिव, राइट? तो आप जब एसआईपी करते हो तो आपका एसआईपी अगर एक ही करते हो और आपका लार्जर फोकस इज टू एक्चुअली गेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिटर्न। फॉर एग्जांपल आपका अगर 12-13% या एफडी से 3-4% ज़्यादा या 10% से थोड़ा ऊपर या कुछ भी, अगर कोई ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को यार ओवर अ पीरियड मेरे को इतने समवेयर आई नीड टू बी अबव एफडी, अबव इन्फ्लेशन एंड सम, बिकॉज मैं रिस्क ले रहा हूँ इक्विटी में, तो मुझे रिवॉर्ड थोड़ा बेटर होना चाहिए। अगर आप उस माइंडसेट से चलते हो तो टॉप 200, 250, टॉप 500 स्टॉक के ऊपर अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू या ईटीएफ्स के थ्रू या किसी के थ्रू आप अगर एसआईपी सेटअप करते हो, इट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी टू एक्चुअली सर्व योर इक्विटी एलोकेशन। तो अब उसमें मतलब इट्स वेरी कॉन्टेक्चुअल इन द सेंस कि हाउ डू यू, अगर आप एग्जांपल दो, फॉर एग्जांपल कि अगर कोई पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर आप कोई पूछते हो कि
इसमें एसआईपी कैसे करना चाहिए, तो दैट कुड बी अ ग्रेट क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे वही गोल सीकिंग वाला प्रॉब्लम आ जाता है कि यार मैं एसआईपी कर क्यों रहा हूँ। एक तो ये है कि मुझे पता है मुझे इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, तो इट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी वेयर यू स्टार्ट विद लाइक स्टैंडर्ड इंडेक्स फंड्स, लार्ज कैप फंड्स। बट वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी आता है, अभी जैसे प्लेटफॉर्म्स पे दिखते हैं कि लास्ट एक साल में जो आउट परफॉर्म किया, लोग उसमें एसआईपी सेटअप कर लेते हैं, बट एक्चुअली ऐसा सही नहीं है, बिकॉज वॉट इज परफॉर्म्ड इन लास्ट 1 ईयर डज नॉट मीन दे विल परफॉर्म इन द नेक्स्ट 1 ईयर। तो वहाँ पे एक 5 साल का व्यू लेके चलना चाहिए। वहाँ पे वही है कि अगर आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में करते हो तो इट इज़ अ ग्रेट प्लेस टू इन्वेस्ट इन इक्विटी। बट बहुत लोग क्या, जैसे लास्ट एक साल में लॉट ऑफ पीपल हैव इन्वेस्टेड इन थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स, कि यार स्पेसिफिक सेक्टर का कोई म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है, क्योंकि वो पूरा क्रेज है। अभी आपने भी सेक्टर का क्वेश्चन पूछा, Yeah. तो वो लोगों को लगा यार ये तो डिफेंस या मैन्युफैक्चरिंग और ये तो अभी बहुत है, और आपने कुछ नहीं किया, सीधा उसी में एसआईपी चालू कर दिया। दैट्स नॉट राइट। तो वो वहाँ पे एसआईपी, जनरली मेरे लिए एसआईपी इज लाइक घर में रखा हुआ गोल्ड। यू डोंट वांट टू गो रॉन्ग विद दैट, राइट? Yeah. राइट, तो वहाँ पे यू स्टे इन्वेस्ट इन द राइट म्यूचुअल फंड्स। उज्जवल, अगर ये सब इफ आई एम अ न्यू इन्वेस्टर और मुझे ये सब नॉलेज अपना इनहेंस करना है, इंक्रीज करना है, और कंफर्मेशन बायस में नहीं रहना है, क्योंकि आई कैन गो एंड टॉक टू माय फ्रेंड्स और हम लोग वही सेम चीज़ बात करेंगे, सेम स्टॉक्स के बारे में, SIPs के बारे में। सो हाउ डू आई एक्चुअली बिल्ड अनबायस्ड पॉइंट ऑफ व्यू? Unbiased point of view is that realize that if you are making a decision इन इन्वेस्टिंग, जहाँ पे आपको सबकॉन्शियसली सिर्फ ये रियलाइज हो रहा है कि ग्रीड है, कि मैं जल्दी मतलब पैसा बड़ा करना है, फास्ट करना है, ग्रो, तो आप मोस्ट लाइकली गलत चॉइस लोगे। बट अगर आप ये सोच के चलते हो कि यार मैं आज क्या कर रहा हूँ, मैं आज सेविंग्स अकाउंट में पैसे पड़े 3%, 4%, मैं उसके आगे घर पे सबको पता है एफडी ईज़ी है, 7%, 6.5% एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कर लो, रिन्यूअल फिक्स्ड डिपॉज़िट कर लो, आप वहाँ तक भी पहुँच गए हो। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद लोग पूछते हैं कि यार 7% पे सही नहीं लग रहा है, अब मेरे को और आगे ज़्यादा जाना है, क्योंकि इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न मेरा, और इन्फ्लेशन एडजस्टेड और पोस्ट टैक्स रिटर्न इज़ नथिंग राइट टू क्रिएट वेल्थ, तो अभी मुझे आगे जाना है। तो वो आगे जाने की जर्नी, सीधा आप फरारी की स्पीड मत लो, छोटा-छोटा इंक्रीमेंटल स्टेप लो। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ नहीं करना है, अगर आपको पहला कदम उठाना है ना मार्केट्स में, कुछ मत करो, एसआईपी कर लो एक इंडेक्स फंड में। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इससे ज़्यादा सिंपल आइडिया नहीं है टू इन्वेस्ट, क्रिएट वेल्थ। वो उसके लिए आपको कोई ज्ञान का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने पहला कदम उठा लिया, राइट? फिर क्या हो सकता है कि क्योंकि आप फिर उसको ट्रैक करोगे, आप मार्केट्स देखोगे, तो फिर आप धीरे-धीरे नॉलेज गेन करोगे। आप ये सोचोगे कि सडनली आपको टेलीग्राम चैनल में, व्हाट्सएप में किसी ने वीडियो भेज दिया और कुछ 4-5 नॉलेजेबल ज्ञान ले लिया जो कन्फर्मेशन बायस के लिए, कि यार ये स्टॉक तो पक्का पक्का इज़ माय बेस्ट बेट, ऐसा कुछ होता नहीं है। या तो तो जर्नी है, मतलब मैं तो बोलूँगा कि एक्चुअली जर्नी, ऐसे बोलते हैं यील्ड कर्व होता है ना, एक्चुअली डेट मार्केट में देयर इज़ अ फिक्स्ड इनकम में यील्ड कर्व होता है। तो आपका ऐसा होना चाहिए कि मैं 3% से 4% पे गया, 4% से 7% पे गया, 7% से 10% पे गया, 10% के ऊपर आप 7 और 8 के ऊपर आप इक्विटीज़ में जाने लगते हो। इक्विटीज़ में भी धीरे-धीरे छोटे स्टेप्स लो। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो आपका एक पोर्टफोलियो हो सकता है जहाँ पे आप रिस्क टेकर भी बन जाओ, फुल रिस्क टेक कर लो। मतलब यू टेक रिस्क लाइक कि मैं ये 2 कंसंट्रेटेड स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहूँगा। I know it can go zero or it could be have 50% negative at particular day in an year, but I can survive that, right? तो वो एक जर्नी है। तो आई थिंक ये जर्नी, मैं ऐसे बोलूँ कि मतलब जब आप शादी करते हो आपको पता नहीं है ना उसके आगे क्या-क्या होगा, राइट? वो जर्नी होती है, राइट? 2 लोग अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, वो जर्नी है, राइट? पैसे के साथ भी, इन्वेस्टिंग के साथ भी वो जर्नी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये सोचना चाहिए कि यार मैं पहले तो मैं सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में रखता था, मैंने एफडी किया, एफडी से मैं आगे बढ़ा, तो मैंने ये एक्चुअली बहुत लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के म्यूचुअल फंड लेते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड टारगेट मैच्योरिटी फंड्स, नोबडी नोज इट। अगर 3-4 साल व्यू के लिए आपको एफडी के ऊपर इन्वेस्ट करना है विद अ बेटर रिस्क प्रोफाइल, बिकॉज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट? टारगेट मैच्योरिटी फंड्स आर ग्रेट प्लेस टू इन्वेस्ट, बिकॉज वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, लॉन्ग ड्यूरेशन यील्ड के, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, स्टेट डेवलपमेंट लोन, म्यूनसिपल बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स अच्छे से पैकेज करते हैं उसे, उसमें इन्वेस्ट कर दो। वो आपको एफडी से अच्छा रिटर्न देगा, वो लॉक कर दो, आपका एक प्रोटेक्टेड एसेट है इमरजेंसी फंड्स के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए।
कहीं पे अगर यील्ड का वोलेटिलिटी आया तो आपको उसमें हो सकता है गेन भी मिल जाए, कैपिटल गेन, बिकॉज यील्ड स्पाइक होता है। यील्ड और ड्यूरेशन का वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट टारगेट मैच्योरिटी फंड से ग्रेट प्लेस गो बियॉन्ड एफडी। फिर आप थोड़ा आगे बढ़ते हो इक्विटी में, तो आप इंडेक्स फंड में एसआईपी सेटअप करो। फिर आगे बढ़ोगे तो फिर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप पे जाओगे, फिर आप इंडिविजुअल स्टॉक पे जाओगे। ये जर्नी है। आप सीधा जाके पहला पेनी स्टॉक उठा लेते हो और फिर बोलते हो यार मार्केट्स अच्छा नहीं है, वो अवॉइड करा जा सकता है। वो आसपास का नॉलेज को कट कर लो कि कुछ भी जल्दी से फ्री में नहीं और एकदम से नहीं हो सकता। तो व्हेन यू आर सेइंग दिस आई एम थिंकिंग कि जो डिग्री मिलता है उसके लिए मेहनत करना होता है, साल लग जाते हैं, तो वो भी स्टॉक मार्केट का भी वही हाल है। मतलब इफ यू हैव टू मेक मनी देन व्हाट आई एम हियरिंग इज बी कंसिस्टेंट, हैव अ वेरी लॉन्ग टर्म व्यू। Nothing can grow faster than you can imagine, and if something is claiming like that, most likely it's a scam. So you need to be well aware कि यार एक जर्नी होती है, और मेरी खुद की भी एक जर्नी है। कुछ लोगों का क्या प्रॉब्लम होता है ना, वो फोमो में इन्वेस्ट कर लेते हैं। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट में इन्वेस्ट करने लगते हैं। कुछ नहीं किया है, सीधा इन्वेस्ट करने लग गए। या सुने किसी से कि बहुत इसका लोग इतना इसीलिए बढ़ गया। फ्यूचर्स ऑप्शंस को लेकर रेगुलेटर का वो व्यू पॉइंट इसीलिए आया था कि दे सो मेनी पीपल हु स्टार्टिंग विद देयर जर्नी इन मार्केट्स विद डेरिवेटिव्स। That's not right. I mean, we are a stockbroker. We also don't want anybody to start their investing journey in markets with derivatives. It's a leverage instrument. You need to know the return reward we discussed, right? And it could actually cause you massive heartburn and losses if you invest wrongly, because it's a leveraged instrument. So nobody should do that. So इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो सीधा आके आप स्टॉक पंट करने लग जाओ, इंट्राडे करो और आपको लगता है कि आप पैसे बना लोगे। उससे अच्छा ग्रेजुअली करो। इट्स नॉट लाइक इंट्राडे इज रॉन्ग, बट यू नीड टू नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, व्हाट मनी ऑफ योर asset or wealth or surplus savings is going into, how much hard burn you can take in each, compartmentalize करो उसको। एंड वो जर्नी है, ये नॉलेज मतलब इट टेक्स टाइम टू एक्चुअली डू अ हार्ड रियलिटी। बट इफ़ यू द बेस्ट वे आई वुड लुक एट इट इज़ कि यार मैं अभी जब भी अपना एसेट एलोकेशन को देखने का कोशिश करता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि मैं इससे और यील्ड ज़्यादा चाहिए मुझे। मेरे को अगर इससे 8% मिल रहा है, मुझे ये पैसे को 8% वाले एसेट में नहीं रखना, मुझे इसको 9-10 वाले में रखना है। मैं 9-10 के लिए मैं सीधा जाके 30% वाले एसेट नहीं ढूँढूँगा ना। ऐसे देखना चाहिए। तो वो गोल सीक करने के लिए जब आप नॉलेज सर्च करोगे इंटरनेट पे या प्लेटफ़ॉर्म्स पे आओगे, आप इंटेलिजेंट होते जाओगे। और गोल्ड इज ऑलवेज एवरग्रीन। Gold is a good asset. See, gold is actually the great hedge to, like, right, market volatility, because it's an uncorrelated asset too. So I would think कि अगर आपको 100 रुपये इन्वेस्ट करना है, 5 से 10 रुपये आप गोल्ड में रख सकते हो। बट आप बोलोगे गोल्ड ज्वेलरी, मैं बोलूँगा नहीं नहीं मे बी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या गोल्ड ETFs विच यू कैन लिक्विडेट। एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स तो बहुत ही अच्छा है, वो तो 2.5% गवर्नमेंट भी देती है उसके ऊपर, गोल्ड रिटर्न के ऊपर। बट हाँ, उसमें लॉक इन है। बट अगर आपको एनी टाइम चाहिए तो गोल्ड ETF इज़ अ गुड, you can liquidate it. Not the jewelries. Not the jewelry, because jewelry has making charges and jewelry's ka depreciation is higher. Yeah, that is a very good point. Okay, so 2 questions. Cashless society का timeline. कैशलेस सोसाइटी का अगर 10 साल पहले टाइमलाइन पूछे होते तो लोग बोलते क्या मजाक कर रहे हो। बट अब लगता है कि आई मीन I think government is a better like institution to answer this. But I think the way we are going, I mean, the UPI के जो और use cases आ रहे हैं with single out, multi debit, and then I'm hearing a latest change in coming where you can actually delegate mandate. For example, a child can pass on a UPI mandate to their parents who can actually approve, and child whatever expenses they have उसमें auto debit होता रहेगा parent Wow. account से। तो the way use cases are being, because foundationally UPI is now population scale, right? Yeah. अब इसमें circumstantial या specific use cases और penetrate होते जाएंगे, and plus 2G वाली जो स्मार्टफोन के नीचे वाली जनता है उसके लिए भी काम चल रहा है। तो I think we are getting there. Will we be 100% cashless society? I doubt that. But we are in that path intentionally. where we will saturate in terms of what a cashless India should look like, which is a great place to be. Yeah. But it's a journey, yeah. And for everyone, how would you say that we should also think about our retirement? About what? Retirement. डर लगता है, मतलब रिटायरमेंट को लेके, जैसे होता है ना जॉब को लेके, पैसे को लेके, रिटायरमेंट को भी लेके डर लगता है कि करते रहेंगे काम, कब छुट्टी लें, कब रिटायर करें। सी अगर रिटायरमेंट, जनरली रिटायरमेंट के का 2 रीज़न हो सकता है। एक हो सकता है कि आपका गोल था लाइफ में कि मुझे इतने पैसे ही चाहिए,
उसके बाद मैं नहीं कोई एक डे जॉब करूंगा, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस रैट रेस, आई वांट टू Yes. रिटायर. I don't want to go to office. हाँ, the other could be health circumstances lead you to retirement, right? Sometimes even potentially you are not employable. There are situations, right? So in all of these, the most important thing is that it is inevitable. At some point, you will need to take a pause in your part to actually make money, right? Or do something which you are really good at, right? I would say that कि आप कुछ करते हो जो आपको अच्छा लगता है, उससे आप पैसे बनाते हो. आपको नहीं भी अच्छा लगता है बट पैसे बनाते हो, वो अच्छा लगता है. बट एक जर्नी आती है जब आपको रिटायर होना पड़ता है, या आप एक सर्कमस्टांसेस ऐसे आते हैं कि जहाँ पे यू कैन नॉट बी फुल टाइम employed into something, but you still need to have a decent life, and that life you need to define. For example, that life for somebody post retirement could be a great home in, or a possibly rented also, in, let's say, a tier 2 city of India, or could be in metro city of India. It could be in their gaon also, In right? Goa. In Goa also. It could be in their rural native home also. Like, for example, you might want to retire in Patna, I don't know. Like, I don't want to retire in Calcutta though. I might possibly want to retire in Bangalore or Bombay. But whatever you I don't want to retire only. possibly, No, but I want to. Yes. but maybe like you want to, like you are saying, don't want, where yeah. you are not coming to Indiranagar daily, for Yes. example. Yes. That's a retirement for And you, facing right? traffic and everything Yeah. else. Yes. So in that you need to actually put down, actually it's a documentation exercise. Like, if you really want to be serious about retirement, it start with pen, paper, pencil, and people who really be part of your retirement journey. कि यार हमें अगर आज हम कुछ भी नहीं करते और हमारे को बस अज्यूम करना है कि हमारे पास जो पैसा सेव्ड है या जो इन्वेस्टेड है, उससे हम हर महीना कुछ निकाल के ये एक लाइफ जीना चाहते हैं. वो लाइफ में हमें क्या क्या चाहिए? हमें अगर एक डिसेंट घर चाहिए, एक डिसेंट गाड़ी चाहिए, 2 व्हीलर चाहिए. इंश्योर करना है कि अगर हमें बच्चों को कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं देना है, इन केस यू हैव किड्स एंड ऑल दैट, या एक्सटेंडेड फैमिली, senior citizens you still need your support, I don't know, it could be siblings also, it could be whatever. You need to jot down कि ये मेरे लिए protected है in when it's a retirement, and where I will not be actively going out to make money or do something which creates money for me, I mean makes money for me, but I will survive on what I have saved and invested. वो जब आप उसको बॉटम अप करोगे, वहाँ से जब वो गोल्स को बॉटम अप करोगे, तो आप रियलाइज़ करोगे, आपको आएगा कि यार महीने का तो मुझे इस लाइफ के लिए मुझे महीने का 10 लाख चाहिए, या 5 लाख चाहिए, या 2 लाख चाहिए. और इन्फ्लेशन का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा. लेट्स से कि वो पर्टिकुलर डे होगा, लेट्स से आपसे 45 की एज पे, लेट्स से 50 की एज पे, 55 की एज पे, और आज से आप इन्फ्लेशन का अगर आप देखोगे कर्व, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो 100 रुपये आज जिसका वैल्यू, उसका उस समय शायद 80 रुपये हो, तो आपको 20 रुपये का गैप भी फिल करना है, राइट? तो ये सारा आपको करने के बाद एक पोटेंशियली आएगा कि यार मेरे को इतना महीने का पैसा चाहिए. फिर आपको बैक कैलकुलेट करके फिर आज की सिचुएशन देखनी होगी, और आपको सोचना होगा कि यार मैं कितना पैसा ये देखूं कि यार ये रिटायरमेंट में मुझे हेल्प करेगा. लाइक इफ़ यू आस्क मी, आई एम नॉट साइंटिफिक टू my retirement planning. What I am scientific to is that कि यार there is a part of my savings on which I'm investing, I possibly don't want to ever touch. That's for me is retirement savings, retirement money. अच्छा, कि इतना पैसा है, मतलब मुझे पता है कि मेरा जो करंट लाइफस्टाइल है और मेरे जो एक्सपेंसेस होंगे और मैं सारे इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, जो उसमें जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसमें एक पार्ट ऑफ मनी मुझे पता है कि यार मैं 10-20 साल इसे देखूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरी करंट लाइफस्टाइल और जो मैं कमा रहा हूँ, और जो पॉसिबली अभी शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट अगले 5-10 साल 20 साल से उससे सर्व हो जाएंगे, ये पैसा मैं नहीं यूज़ करूँगा. वो मेरे लिए प्रॉक्सी है रिटायरमेंट का. तो वो पैसा मैं ऐसे एसेट्स में डालूंगा जो मैं आज उस लेवल पे रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि उसमें 20 साल का व्यू है, यार 15 साल का व्यू है, या 10 साल का व्यू है. तो मेरे को पता है कि ये जो मैं अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ विद 10 ईयर होराइजन एंड 10 ईयर बियॉन्ड वाले जो होराइजन में जो है, ये सब मिला के मुझे, अगर मैं मैथ्स लगाऊंगा, तो मुझे जो लाइफस्टाइल चाहिए, अगर मैं सब कुछ बंद हो जाता है आज, इनफ्लो ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज आई स्टॉप doing what I love and just relies on what I've saved, I know that I'll be able to survive a life. So retirement is a very complex problem, but it is inevitable. चाहे मैं और आप दोनों पागल है कि लाइफ में कुछ ना कुछ करते ही रहना है. I'm sure all of us are like that and we believe in that कि मरते दम तक काम करेंगे. but inevitability we ये should है, shift to Europe. yeah, inevitability ये है कि sometimes retirement comes without your plan. Yeah. Life gives you that. Yes. It could be anything. You may go through a major accident. Come what may. I mean, it could be anything. But there is a part of your life which you should survive on the money you have saved and invested. And if you club in that retirement like category, I think that's how you need to look at it. Generally, young age mein it is too
like people say it's too utopian to think about retirement. अभी तो मैं young हूँ, right? तो बट द फैक्ट इज द गुड पार्ट इज दैट अगर इक्विटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एनीवेज आप लॉन्ग टर्म व्यू से बिल्ड कर रहे हो तो वो कंपाउंड होते रहेगा। तो एक पॉइंट आएगा कि आपको एक पैसा होगा कि यार ये तो मैं इतना कंपाउंड करके इसको तो मैं भी देखूंगा ही नहीं, वो आपका ग्रेजुअली वो जाते जाते और रिटायरमेंट के लिए जा रहा है। तो बट दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू पुट योर मनी इनटू प्रैक्टिस। एक इनसिक्योरिटी रहता है मनी को लेकर, मेरे अंदर भी रहा है। नाउ आई एम वर्किंग मैनिफेस्टिंग दैट I'll have great money and money will come to me in abundance and all that। मगर हम लोग जो एक मिडिल क्लास, अगेन मैं कहूँगी घरों में पले बड़े हैं, वी आर ऑलवेज अ लिटिल बिट इनसिक्योर, कि हमको लगता है कि संभालो, ठीक से करो, पता नहीं ईजीनेस नहीं लगता है वो जो रिच लोग में फीलिंग होता है, और शायद इसीलिए वो रिच होते हैं क्योंकि उनमें एक ईज होता है। हाउ डू यू बिल्ड अ वेरी सिक्योर रिलेशनशिप विथ मनी? It's a very good question. I think one of the reasons actually a lot of people actually don't follow their life like passion or purpose because वो जो current state में होते हैं या job में होते हैं, वो वहाँ पे ये unlearn करना कि यार especially people like us who come from middle class background is that कि यार how can I give up this job? How can I give up so much of salary, Yes, right? yes. And that's the insecurity with money, Yes. right? And I think इसका कोई straightforward answer नहीं है. It's a journey. Now like if I put my personal life into practice here, I would say that मैं बार-बार अपने जॉब पे ये वैलिडेट कर पा रहा था कि यार आई कैन एक्चुअली बिल्ड थिंग्स, सो व्हाई एम आई डिस्काउंटिंग माई सेल्फ। सो आई थिंक मैं जब एकदम रूट कॉज पे आता हूँ तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आती है कि वो इनसिक्योरिटी इज इनएविटेबल बिकॉज दैट्स यू कैन अनलर्न मिडिल क्लास लाइफ, राइट? Yeah. एंड कि सर्वाइवल और गुड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमने वो देखा नहीं है, जर्नी के थ्रू मिला है, तो वो छोड़ना नहीं है हमें, वो डर है। बट उस जर्नी में एक पॉइंट आएगा जब आपको ये खुद से सवाल करना होगा क्या मैं अपने आप को इतना डिस्काउंट कर रहा हूँ इस इनसिक्योरिटी के लिए कि मैं कुछ और कर सकता हूँ या बड़ा, उस पैसे के साथ भी और अपने साथ भी। वो जर्नी वो क्वेश्चन आप जितना अपने आप से करोगे ना, आपको अपने आप को डिस्कवर कर पाओगे। तो मेरे लिए वो हेल्प किया कि एक पॉइंट आया कि यार मैं इनसिक्योर होके भी सोचूं तो मैं क्या करूँगा। मैं अगर जॉब छोड़ के भी स्टार्टअप करता हूँ, मैं एक मीनिंगफुल चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसा भी नहीं कुछ रैंडम आइडिया पर रैंडम प्लान कर रहा हूँ। समथिंग विच इज़ माई स्ट्रेंथ ऑल्सो, व्हाट कुड गो रॉन्ग पॉसिबली, आई विल कम आउट बेटर ओनली। अगर मैं 5 साल के व्यू पॉइंट से रहूँगा, मैं 2 साल में जो ये जर्नी के थ्रू सीखूंगा, भले ही मुझे वापस अगर जॉब वर्ल्ड में आना पड़ा तो मुझे आई विल बी बेटर प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, राइट? सो वो मिडिल क्लास इनसिक्योरिटी डिड द मैथ एंड देन फाइनली डिसाइडेड कि चलो करते हैं स्टार्टअप। बट वहाँ पे अपने आप को थोड़ा कम डिस्काउंट किया और आपने एक स्टेप लिया। तो आई थिंक इनसिक्योरिटी जो मनी के साथ है ना, वहाँ पे आपको खुद से सवाल उठाना होगा कि यार मैं कब तक अपने आप को डिस्काउंट करता रहूँगा। That's a very good एंड question. एंड आई थिंक ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक छोटा विंडो लेके ना आप इनसिक्योरिटी को कट कर सकते हो। बड़ा विंडो मत लो, छोटा विंडो लो एंड प्ले अराउंड विद दैट छोटा That's a विंडो। very powerful question, that we discount our own purpose, joy, meaning in this insecurity. Yeah. बिकॉज वो इनसिक्योरिटी लीड्स टू योर लाइफ कि आप सर झुका के बस वही करते रहे जो आप क्योंकि हम चाहते वही नहीं थे। देखे हैं और देखते हैं वही। और सुनते हैं। So yes, no, but this is very good and this is also for everyone. I think this is a very powerful point you have given, Ujjwal, कि सबको इसके बारे में सोचना चाहिए। And you're saying ना रूट कॉज पे जानना चाहिए कि कहाँ से आ रहा है ये इनसिक्योरिटी। आई थिंक दैट्स व्हाई यू सेड ना रिच पीपल डोंट गो थ्रू इनसिक्योरिटी बिकॉज वो इनसिक्योरिटी नहीं, उनकी इनसिक्योरिटी बल्कि वो दूसरे साइड वाली है कि हाउ कैन आई एक्चुअली बी ऑन लाइक द मोस्ट इम्पैक्टफुल साइड ऑफ थिंग्स, राइट? Yeah. But for us, that's a journey, right? It could take 5 years, it could be take 1 year, it could take 10 years. But that question needs to be asked beyond a point where you are better placed than what you ever imagined in life. Yeah. मतलब कभी जब स्टार्ट किया था जॉब तो सोचा नहीं था कि 1 करोड़ की सेविंग्स होगी तो लाइफ में और क्या चाहिए, राइट? बिकॉज यू that's something you never saw, imagined, right? And then once you have that, then that's a place where you now need to think about कि यार ये तो इनसिक्योरिटी क्रॉस हो गई, अब मैं अपने आप को डिस्काउंट कर रहा हूँ क्या? And I think that's you need to every time you need to find those milestones in life and need to question. I think somewhere you will get the answer. So one question I wanted to ask slightly different is on ESOPs. क्या मायने रखता है आज के डेट में स्टार्टअप वर्ल्ड में ESOPs, and how should me as an employee and a prospective employee in a company look at ESOP? एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल है। मुझे बहुत बार ये सवाल हमारे यहाँ लोग जब पूछते हैं ना कि यार मुझे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है
तो मैं बोलता हूँ तुम तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो बिकॉज तुम्हारे पास ईसॉप है बिकॉज सी you in this case you did not use your financial capital to get startup allocation. You put your human capital which you Yeah. take as part of your job to and that's where we really make people understand ESOPs. And I think for aspirational India, people like who really are bold enough to actually think कि इंडिया में कुछ अच्छा काम हो रहा है और इंडिया में लोग अच्छी चीज़ें बना रहे हैं एंड ग्लोबली उसको इम्पैक्ट भी कर सकते हैं कुछ बिजनेसेस, तो मुझे उस जर्नी का पार्ट होना है। तो सिर्फ सैलरी नेगोशिएट मत करो, प्लीज़ ईसॉप भी नेगोशिएट करो बिकॉज दैट्स योर इन्वेस्टमेंट इन दैट स्टार्टअप with your human capital talent. And we talked about India growing. If India grows and if you are in investing your human capital in a company through your job and your talent, and you believe in that founder, you believe in that business and the purpose they are solving for, you should ask for ESOPs. It could be a small amount, but that should be part of your compensation, and it's a great place to actually create an inclusive employment environment वहाँ पे जहाँ पे लोगों का stake involved है आपकी कंपनी के growth के साथ. And I think that is where I think the startup world has done really good job in terms of creating that equity, shared wealth through equity, ESOPs, and all Yeah. that, which is so mainstream now. And I really like Bangalore for that matter. I think it's a city which has actually made this such a mainstream thing, right? या आई वांट टू से मैंने पोस्ट किया था, ये रूट मोबाइल का इंटरव्यू किया था, वहाँ पे ऑफिस बॉयज जितने थे वो 3-3 करोड़ रुपए कमाए ईसॉप से. Yeah. I think a great company ESOP policy involves that there's a basic bare minimum ESOP they give to every employee who joins the firm, and obviously as you grow, then it's Yeah. on a merit. I think it's a great place to actually build a company where everybody is empowered. I mean, if you ask me, two companies doing the same thing and in the same competitive category, right? And one with ESOPs, one without ESOPs. Without a doubt, I will bet on the company with ESOPs. या So you get it right. या और कल्चर भी दिखता है, Culture कमिटमेंट दिखता भी दिखता है. हाँ जी, हम लोग देखें कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग पिछले 2-3 पैंडेमिक से बढ़ा है, काफी बढ़ा है. ज़ेरोधा के बारे में हम देख रहे हैं, ग्रो के मतलब सब ग्रो कर रहे हैं. आप ग्रो कर रहे हैं, शेयर मार्केट ग्रो कर रहा है. हाउ डू यू सी इफ यू कैन गिव अस अ लैंडस्केप कि अभी क्या है ये जो न्यू इन्वेस्टर्स आए हैं, ओवरऑल इन्वेस्टर्स हैं, एंड वेयर इज दिस ट्रेंड हेडिंग? लाइक बहुत ऊपर से अगर आप ट्रेंड देखोगे तो ये ट्रेंड है सेविंग्स का, फिनेंशियलाइजेशन का, जहाँ पे जो हमने बात किया था ना कि सेविंग से जब पैसा बाहर निकलता है कहाँ जाता है इन्वेस्ट करने के लिए। पुरानी दुनिया में गोल्ड ज्वेलरी में जाता था, रियल एस्टेट में जाता था, फिर बाद में फिक्स्ड डिपॉजिट्स बिकॉज बैंक स्टार्टेड टू गेन डिपॉजिट शेयर। वो अब थोड़ा मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन स्केल पे इक्विटीज़ हो गया है एंड उसको स्टीयर हेड यंग जनता ने किया हमारी, जो अपने जो पीपल हु आर इनटू जॉब्स, यंग पीपल हु आर एस्पिरेशनल फंडामेंटल लेवल पे वो अपनी इनसिक्योरिटी के ऊपर जल्दी उठ चुके हैं। तो वो ट्रेंड इक्विटीज़ में दिखता है। वहाँ पे यंग पीपल आर इन्वेस्टिंग वेरी एक्टिवली इन मार्केट्स बिकॉज दे बिलीव इन इक्विटीज़ एज एन एसेट क्लास। एंड जो जनता मतलब जो द पॉपुलेशन विच हैज एक्चुअली क्रिएटेड लॉट ऑफ सेविंग्स ओवर अ पीरियड एंड दे आर स्लाइटली ऑन द 35-40 प्लस एज, you see they definitely go into equities in some way or form at some point in their savings. It is now going into larger in the pyramid curve. In the pyramid it's going below also, where people with small savings are going into equities, and mutual fund, SIP, ये सब ने बहुत support किया इसे। and ये trend I think it's an inclusive, it's a system, it's a population scale, it's going to be their trend. एंड आई थिंक क्योंकि इंडिया का भी ओवरऑल पेनिट्रेशन ऐसे कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरीली आगे नहीं गया है, अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है, तो ये चलता रहेगा। इसीलिए तो रेगुलेटर्स आर सो meaningfully they are creating right guardrails that the market stays protected, people's trust in market stays protected, and people gradually actually look equities very very seriously for their savings Yeah. deployment. Yeah.